السلام علیکم ناظرین، میں بشیر بلوچ ملیر کی تاریخی معاشرتی پس منظر پر جو انٹرویوز کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا وہ تاحال جاری ہے، اور آج ہم پہنچے ہیں ملیر کے علاقے درسانہ چھنا میں۔ ہم جانیں گے درسانہ چھنا کے نام جو یہاں اس علاقے کو پڑا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے، اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے اس پورے علاقے کو جو آج ہریالی اور سرسبز باقی جو ملیر کے باقیات ہمیں پائے جاتے ہیں تو اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں، تو اس کو کیسے انہوں نے محفوظ رکھا اور تاریخی طور پر یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہاں پر جو تاریخی مقامات ہیں وہ کتنی پرانی ہیں، ان کو ہم کھنگالیں گے، ان کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں یہاں کے ایک معاملات پر جانکاری رکھنے والے اور ایک بزرگ حاجی پیر محمد ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ حاجی آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ حاجی جس طرح سے ہم نے اپنی انٹرو میں یہ بات کہی کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں جی یہ درسانہ چھنا کہلاتا ہے، جی ہاں یہ ہے کیا؟ یہ دو لفظوں کا ایک کمپاؤنڈ فریز ہے، جملہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں تاکہ ہم اور ہمارے جاننے والے جو ہیں وہ اس کو جان سکیں؟ یہ اصل جو کیا قوم ہے جو ایک برادری رہتے ہیں 10 جی جی ایک صنعت قدرت شیلٹر حاجی اردو تو اگر بات کریں تو تاکہ ہمارے جو ناظرین اردو ہاں، سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آئے بات۔ یہ جو کیا قبیلے کے درس ہیں وہ درس بھی دیتے تھے اور مہمان نواز بھی تھے۔ ٹھیک، ان لوگوں نے ایک چھنا بنایا تھا، چھنا اس کو سندھی میں کہتے ہیں جو شیلٹر ہوتا ہے، جی جی وہ شیلٹر بنایا تھا، چھاپڑا جسے بولتے ہیں۔ چھاپڑا۔ ہاں اس کی وجہ سے صرف دیہ کا نام ہی درسانہ چھنو پڑ گیا۔ اچھا، تو یہ کتنی قدیمی تاریخی جو ہے یہ علاقہ ہے آپ کی یاداشت یا آپ نے جو بات سنی اپنے بڑوں سے؟ جہاں تک میں تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، بڑوں سے بات سنی ہے جی جی کہ درس بہت قدیمی علاقہ، درس بہت قدیمی طور پر یہاں پہ بیٹھے تھے، وہ چھنے میں تعلیم بھی دیتے تھے اور مہمانوں کے لیے یہ درس کیا مذہبی پیشوا تھے ہیں کیا یہ لوگ؟ یہ قرآن شریف کا درس دیتے تھے۔ اچھا، اسی نسبت سے ان کا نام درس پڑا ہے۔ درس پڑا۔ اچھا، یہ کوئی ان کے پاس کرامتیں بھی ہوا کرتی تھی، لوگ یہی سمجھتے ہیں؟ کرامتوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن درس اس لیے کہتے تھے کہ درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، بیسیکلی یہ جو کیا ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر جوکھیا کا ان کے بیک گراؤنڈ جوکھیوں سے؟ جو کیا ہے۔ اچھا، تو حاجی صاحب یہاں پر آپ لوگ، آپ کی فیملی کس سن میں آ کے یہاں آباد ہوئے؟ ہماری فیملی تقریباً 1900 میں آ کر یہاں پر آباد ہوئی۔ کہاں سے آپ پہلے کہاں رہتے تھے؟ پہلے ہمارے پردادا تھے وہ آئے تھے مکران سے، باو کلا سے، وہاں سے وہ آتے تھے اس طریقے سے کہ یہاں آتے تھے، لیبر وغیرہ کرتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ مطلب وہ سیزنل تھے کہ ایک موسم یہاں گزارتے پھر واپس چلے جاتے؟ ادھر چلے جاتے تھے، جیسے بلوچی میں بولتے ہیں کہ حامین ہوتا تھا، ہاں ہاں، تو حامین میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے دادا جو آئے وہ تقریباً یہاں پر سیٹل ہو گئے۔ کیا نام تھا آپ کے دادا کا؟ جور محمد۔ دور محمد، جی ہاں، جی، یہ گاؤں بھی انہی اسی کے نام سے ہے۔ جی۔ تو یہ آپ لوگ پھر یہاں آئے، آپ لوگوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سیزن یہاں گزارا کراچی یا ملیر میں، اس کے بعد جب آپ کا آمین آیا وہاں جو فروٹ سیزن وہاں کا آیا تھا تو آپ لوگ وہاں چلے گئے، جب آ کے مستقل یہاں آباد ہوئے تو آپ لوگوں کا ذریعہ معاش تھا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی فیملی کو تو ایک زمیندار فیملی کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ لوگ یہاں جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس اچھی خاصی یہاں کی زمین ہے اور وہ زمینداری کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں۔ یہ 1900 کے بعد جب ہمارے دادا گرما یہاں آئے تو یہاں پر اس نے پہلے
बनिए होते थे यहाँ पर, उनका उनसे हारी हो गए, उनके किसान वो किसान। जमीन का किसान रहे। किसान थे। जी उसके बाद किसान के बाद इन लोग थोड़ी बहुत जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। ठीक। कुछ लोगों से खरीदनी शुरू की, कुछ दूसरा तरीका भी था। यहाँ पर लोग आम का दरख्त लगाते थे, उसको जमीन का आधा मिलता था। वो अंग्रेजों के जमाने में ये कानून था। कानून था। हाँ तो आपस में एग्रीमेंट होता था कि बाग तैयार होगा फिर आपको आधा जमीन आपको दी जाएगी, सही। उसको ट्रांसफर भी उसके तो नाम मतलब मेहनत इनकी थी, उन्होंने हरियाली की, जमीन को बनाया, काश्तकारी की, पर उसके एवज जो है उनको फिर आधा हिस्सा जमीन का मिलता था। मिलता था। ठीक। तो ये फिर बढ़ते बढ़ते अब माशाल्लाह तो यहाँ के बड़े जमींदारों में इनका जी शुमार हाँ, जी होता है। हाँ। तो ये फिर ये इनके अलावा भी इनकी जरा मुआश था, क्योंकि सब्जी मंडी जब वजूद में आई अंग्रेजों के ज़माने में, तो फिर वहाँ पर इनके वो कमीशन एजेंट जिसे कहते हैं या कोठी जिसे कहते हैं, फिर वो हाँ। बनी इनके आजी चाकर के नाम से या उनके दीगर आपके रिश्तेदारों या आपके ख़ानदान के लोगों से के नाम पर। हरी चाकर के नाम से बनी थी। कुछ और लोग भी गए थे सब्जी मंडी में, वो आरती का काम भी करते हैं। जी जी। ज्यादातर हमारे खानदान में ये काम नहीं हुआ। अच्छा, तो आप मतलब आजी चाकर भी आपके ख़ानदान से हैं? जी हाँ, जी हाँ, तो आपके खानदान से तो उनका इसी ज़रिए माश से ताल्लुक रहा है। जी। तो यहाँ पर एक और भी इसका जो है तारीखी पस मंज़र है। यहाँ पर एक छोटा सा आप हम जाएंगे यहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर अंदर, 8-9 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह है जिसे महाजन कहते हैं। ये क्या है? महाजन के मानी क्या है? महाजन कहते हैं, ये है हमसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। 3 किलोमीटर है। जी हाँ। अच्छा। ये बनियों के टाइम पर छोटा सा बाजार जो होता है, जहाँ कारोबारी इलाका होता था, उसको वो बनी महाजन कहते थे। अच्छा, महाजन का मतलब क्या? वहाँ क्या वो सरगर्मियाँ क्या होती थी? मतलब मुआशी सरगर्मियाँ होती थी? मुआशी सरगर्मियाँ होती थी। तो उनकी दुकानदारी थी, उनके बनियों के गोदाम थे। आपकी याददाश्त में ये शहर था छोटा सा जो? जी हाँ, आज भी है। आज भी है। तो उस जमाने में आप बनियों की बात कर रहे हैं, तो बनिया यहाँ आबाद थे, उनकी दुकानें थी? बिल्कुल थी। क्या क्या कारोबार करते थे वो यहाँ पर? वो ज्यादातर जमींदारी करते थे। हाँ। और आरती भी थे। अच्छा, यहाँ दुकान किस चीज की थी? दुकानें यहाँ पर ज्यादातर राशन की और कपड़े की थी। मिठाइयों की दुकान भी हुआ करती थी यहाँ मिठाई पर? की दुकान तकरीबन नहीं थी यहाँ। नहीं थी। तो यहाँ से मुख्तलिफ ये जो छोटे छोटे जो बस्तियां आबाद थी, वो यहाँ आके अपने जिंदगी की जरूरत खरीदते थे। अच्छा, तो ये महाजन इसी को कहते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि महाजन को कितने लोग यहाँ जानते होंगे कि इसके माना जो है यही है जो आप बता रहे हैं? और दरसाना छन्ना के लोकल लोग तो जानते होंगे इनको, लेकिन जो शहरी आबादी आप समझते हैं कि इन लफ्जों के मानू से वो मानूस हैं या इनको समझते हैं? वो मुश्किल है, मेरे ख्याल में मुश्किल समझते हो। ये दरअसल ये भी 2 लफ्जों का माँ उजन है। हाँ, माँ उजन। हाँ, अच्छा, ये बड़ा माँ माँ माने महा, हाँ, उससे निकला है। बड़ा। हाँ, जी। उजन माने शहर, उजन माने बाजार। बाजार। अच्छा, सिंधी में बाजार उस इलाके को कहते हैं जहाँ पर तिजारती कारोबार हो, दुकानें हो, मार्केट हो, इस तरह से। ठीक। तो यहाँ पर एक ये जो लोग आप रह रहे हैं, आपने अभी भी माशाल्लाह हम देखते हैं कि यहाँ हरियाली है, यहाँ मेवाजात के दरख्त, हमें शरीफा के दरख्त दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ सामने से आए तो अमरूद के दरख्त थे, आगे जाएंगे तो हमें पपीता भी मिलते हैं। तो आपने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ काश्तकारी में गुजारी है, तो आपकी यादाश्त में वो कौन कौन से मेवाजात सब्जियां यहाँ उगती थी जो आज भी उग रही हैं? शुरू में यहाँ पर ज्यादातर हमारे देसी आम ज्यादा उगते थे। अच्छा। फिर जैसे पानी की लेवल नीचे चली गई, आम आस्ते आस्ते खत्म हो गए। फिर उसके बाद अमरूद थे, अमरूद भी तकरीबन अभी इस इलाके में खत्म हो गए। अभी शरीफा और लीमू के बागात हैं। अमरूद के बड़े बागात हैं? अमरूद के बड़े बागात। मतलब क्या इनके फिर यहाँ खपत यहाँ कराची में होती थी या बाहर भी बेचते थे? कराची में। तो एक जमाना था यहाँ से जो है दुबई वगैरह ये इधर भी अमरूद जाया करते थे, यहाँ आपके दरसाना छन्ना से जाते थे, लेकिन बहुत सारे दूसरे इलाकों से जो है वो इसको एक्सपोर्ट किया करते थे।
वो यहाँ से तो सिर्फ कराची पर जाते, पर वहाँ से आर एक्सपोर्ट करते होंगे। अच्छा, ये जो आपने शरीफा, अमरूद और इन चीजों की ये बड़े पैमाने पर यहाँ उगती थी। जी हाँ। तो इसका जो ज़राए आबपाशी निज़ाम था वो क्या था आपकी याददाश्त में? पहले कैसे, किस तरह से इनको आबाद किया करते थे? जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पर पहले पहले तो मल्ली नदी का जो पानी होता सैलाबी करता था, जी, वो जमीनों पर चल जाता था, पर उस पर बारानी आबादी करते थे। मतलब वो उसके नमी से, उसकी जो नमी पानी आके रुकता था उसकी नमी से आबादी करते थे। उसके बाद पानी की लेवल जैसे नीचे चली गई तो जमीन पर पानी चलना शुरू नहीं हुआ, तो उन लोगों ने अपना तरीका निकाला, तो उसको सिंधी में कोश कहते हैं। जी जी, कोशों से आबाद करते थे, बैल खींचते थे पानी निकालते थे। हाँ। तो ये जो बारानी तरीके काश्तकारी है, ये कितना अरसा जो है पानी की नमी मौजूद रहता था, जिससे जो है आप लोग फसल या यहाँ पर दरख्त लगाते थे? ये तकरीबन 3-4 महीने तक रहता था। जो नदी का पानी चलता था नहीं, हाँ, उसकी नमी 3-4 महीने तक होती थी, पूरा फसल निकल जाता था। तो उस जमाने में जिस तरह से आप पानी की नमी से फसलें उगाते थे, तो क्या क्या उगाते थे उस जमाने में? ये तो बड़े बड़े दरख्त भी उसमें उगते थे। उसमें बड़े दरख्त कम थे। अच्छा, ये सब्जियां और गंदम वगैरह उगाते थे, गन्नम वगैरह और सब्जियां उगाते और थे। घास। तो उसके बाद क्या आया? फिर कोश आए, फिर उसके बाद कोश आया, जी, तो कोश पर उन लोगों ने आम के दरख्त भी लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, वो उससे ज्यादा पानी आना शुरू हो गया कोश से। जी हाँ। तो ये पानी का सतह जो सतह थी वो कितनी गहराई थी? उस तक तकरीबन 15 से 20 फुट थी। 15 से 20 फीट। तो ये कुएं खोदने शुरू हो गए, लोगों ने कुएं खोदे। खोदने शुरू हो गए, कुएं खोदे। हर एक जमीन में अपना अपना खोदा था, कुआं होता था, हाँ। उसको नजदीक की आबादी करते थे, अच्छा, मतलब वो जो करीबी जमीनें थे उनको सैराब किया करते थे। सैराब करते। तो ये सर उसके बाद क्या आया? फिर ये बड़े कुएं आ गए, गहरी कुएं हो गए। कुएं जैसे कुएं गहरे हो गए, कोस में पानी निकालना मुश्किल हो गया, तो उस वक्त से फिर ये स्टीम इंजन आ गई। अच्छा, यहाँ स्टीम इंजन चलते चलते थे यहाँ पर। जी हाँ। तो उसके बाद फिर क्रूड ऑयल के इंजन आ गए। क्रूड ऑयल के इंजन आ ये गए। कब आपकी याददाश्त में ये जो स्टीम इंजन है वो किस सन में यहाँ लगा किसी के पास? स्टीम इंजन मेरी यादगिरी में नहीं है। अच्छा, आपसे पहले लगी? पहले लगी। तो आपके याददाश्त में क्या ये क्रूड ऑयल इंजन? क्रूड ऑयल इंजन से। वो कौन से सन में लगी? यहाँ कुछ याद है आपको? ये तकरीबन सन 40 में, 1940 में लगी। 1940 में लगी थी। जी हाँ। तो ये पानी रफ्ता रफ्ता इनकी सतह नीचे चली गई, या आपके याददाश्त में यही 25, 30, 40 फीट तक जो है पानी था कुआं में? पानी की सतह नीचे चले जाने के बाद बहुत से असबाब हैं। एक तो बारिशें कम हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये बड़ी नदी से कराची शहर को रेती बजरी सप्लाई होनी शुरू हो गई, तो पानी बह कर डायरेक्ट समुद्र में चला गया था, जमीन में जज्ब नहीं होता था, रेती निकल गई थी। उसके बाद से सतह आस्ते आस्ते नीचे चली गई। तो आपके यहाँ से अभी भी हरियाली दिखती है, फ्रूट्स लगे हुए हैं, दरख्तें लगी हुई हैं। तो क्या इस वक्त आपके इलाके में नदी में रेती बजरी मौजूद है, इसी वजह से यहाँ पानी मीठा है और ये दरख्त जो है हमें हरियाली नजर आ रही है? कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर लोगों ने कम निकाली है। क्या उसकी वजह आप लोगों की मज़ामत थी, या मज़ामत भी थी कुछ। क्या मतलब आप लोग यहाँ के मकामी लोगों ने दरसना चना के क्या किया? क्योंकि हम देखते हैं तो अब तो पाचरान तक जो है रेती बजरी निकाली जाती है, लेकिन आप लोगों ने कैसे उसको बचाया? हम मज़ामत करते थे, गवर्नमेंट को भी लिखते थे, रहते थे। हाँ। गवर्नमेंट ने 144 लगा के बंद किया। फिर मसला ये है कि हमारी जो पुलिस है वो अपने तौर पर भी निकालती रहती है। तो आप लोगों ने मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ कभी आपकी याददाश्त में रेती बजरी माफिया से? खास झगड़ा नहीं हुआ, मामूली झगड़े होते रहते हैं। हाँ, तो फिर मतलब ये कि आप लोगों ने रोकने की कोशिश की की थी। बज़ोर ताकत भी उनको रोका है। जी हाँ। तो आप समझते हैं कि ये कितने अरसे तक अगर इसको फिर से सैराब करना, मलीर, अब तो जमीन रही नहीं उस तरह से जो पहले जमाने में थी, लेकिन जो बची कुची जमीन है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार होने चाहिए? तरीक़ेकार के
आगे आइए पोस्ट करना, आइए पोस्ट। जितनी यहाँ पर जमीन बची है अभी तक, जी हाँ, उसको महफूज करना, उसके हरियाली और सब्जी को महफूज करने के बरकरार लिए रखने के आप लिए एक काश्तकार के हैसियत से बड़े सीनियर काश्तकार हैं, आपका तजर्बा है, क्या इकदाम हुकूमत वक्त करे या यहाँ के नुमाइंदे करें कि उससे जो है ये ज़राअत बच सके? तरीका एक है। एक तो ये जैसे अंग्रेज के टाइम पे एक कानून था, ये जमीनें जो है ये रेजिडेंसी नहीं होती थी, अच्छा इनको ये पाबंदी लगाई जाए ताकि कोई रेजिडेंस के लिए जमीन नहीं खरीदे। अच्छा दूसरी बात, ये मली नदी के पानी की सतह ऊपर लाने के लिए इनको छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए ताकि पानी रुक के फिर चला जाए। सही। तो आप ये समझते हैं कि असेंबली में कानून साजी होनी चाहिए जी हाँ, कि भाई यहाँ जो एक अजदहा की सूरत में प्लाटिंग हो रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो अंग्रेज के जमाने का कानून, उस कानून को दोबारा नाफिज किया जाए। आप ये समझते हैं? नाफिज किया जाए, ये प्लाटिंग वगैरह के लिए जमीनें खरीदने बंद हो जाए ताकि खेती बाड़ी के लिए ये जो ग्रीन बेल्ट है उसको बचाया जा सके। तो अब तक हमारे यहाँ जो नुमाइंदे, आप समझते हैं कि उन्होंने इस तरह का कोई कोशिश उनकी नहीं थी रही? ये वजह क्या थी? क्योंकि मेरे आप ख्याल में आपके मोहल्ले से जनाब अब्दुल हकीम बलोच मुसलसल जो है पब्लिक के नुमाइंदे रहे हैं, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, जी हाँ, तो आप लोगों ने उनको ये मशवरा नहीं दिया? वो खुद भी जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। खुद भी मशवरा, हमने भी मशवरा दिया है, खुद भी उनको पता है। जी उन लोगों ने शायद कोशिश भी थोड़ी बहुत की है, लेकिन अभी तक कानूनी तौर से उसका कोई हल नहीं हुआ है। तो इस जमीन में अभी जो आपके नुमाइंदगी कर रहे हैं साजिद जोक्शो हैं, जाम अब्दुल करीम हैं, जी हाँ, तो इनसे आप लोगों का राब्ता हुआ है कि भाई ये इशू है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानूनी जो है एक्ट बनाए जाएं असेंबली में, ताकि यहाँ के लोगों की ज़मीनें बच सकें और आबादी जो जिस तेज़ी से मुंतकिल हो रही है और हरियाली जिस तेज़ी से ख़त्म हो रही है वो महफूज रह सके? शुरू में अब्दुल हकीम बलोच से इस बारे में बड़ी मीटिंगें भी हुई थी। अच्छा उसने रेती बजरी के खिलाफ अच्छा सा एक्शन भी लिया था, लेकिन बाद में जो है उस पर अमल दरामद हुआ ही नहीं, कम हुआ। तो आजी साहब, आप बलूची भी माशाल्लाह बोलते हैं अच्छी, जदगाली आपकी मादरी ज़बान है, सिंधी आपको आती है, उर्दू आप रवानी के साथ बोल रहे हैं, ये सब कुछ आपके यहाँ इस इलाके या इस खित्ते में रहने की वजह से आपने सीखे हैं या इसके पीछे कोई और राज भी पना है, आपकी अपनी दिलचस्पी भी है? ये जुबानें जो हैं असल में हमारे जो जुबान है जदगाली जिसको आप कहते हैं, वो लसबेले के लहजे की सिंधी है। जी वो हमारी शुरू से मादरी जुबान है। ठीक है, दूसरी बात, सिंधी जुबान पर हमने यहाँ तालीम हासिल की है सिंधी में। ठीक है। और उसके बाद ये इलाके में जो सिंधी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, उससे हम सिंधी भी हैं। वैसे हमारे खानदान तो सब बलोची से रब्ता ज्यादा है, बलूची बोलने वालों से, क्योंकि आप बलोच तो हैं अपनी हाँ, जगह। तो बलोची बोलने वालों से रब्ता ज्यादा है, तो बलोची भी सीखनी मतलब पड़ती आपकी माशरती ताल्लुकात बलोचों से बड़े मजबूत है। हाँ, गहरे हैं, काफी जो है, बलूची बोलने वाले हैं। काफी है। ठीक, हमारा रिश्तेदारी भी है। हाँ, हमारे गांव में भी बहुत से खानदान ऐसे हैं अभी भी बलोची बोलते हैं, मतलब वो जदगारी सीखना उन्होंने सीखी है, लेकिन घरों में बलोची बोलते बलोची बोलते हैं, तो उनसे भी बलोची। दूसरे शादी ब्याह के जो गीत होते हैं वो भी हमारे ज्यादातर हैं। बलोची तो में। हाजी साहब, ये महाजन का लफ्ज जो आपने कहा कि यहाँ बनिया रहते थे, अब भी रहते हैं? बनी नहीं अभी, ये कब कब यहाँ से हिजरत करके गए? ये तकरीबन सन 48 तक। 48 में थे, तो यहाँ लड़ाई झगड़े तो थे नहीं, है क्यों गए? लड़ाई झगड़े नहीं थे, ये बनी जो थे तकरीबन सिटी एरिया कराची के आदमी थे। यहाँ रिहायश उनकी नहीं थी? रिहायश नहीं, कम थी, कम बिल्कुल थी। कम। ये मलिन सिटी के इलाके में रहते थे? मल्ली सिटी या बोल्टन मार्केट में वगैरह। अच्छा, इनका सेटल्ड एरिया मलिन सिटी में थे। दो चार जो जगह हैं यहाँ पर इनका मंदिर भी है, जिस तरह से आज अब भी मलिर मंदिर के नाम से जाना जी जाता हाँ, है। जी हाँ, यहाँ इनके मंदिर इबादत गाहें थी? मंदिर कोई नहीं है, इनका मंदिर नहीं है, सिर्फ यहाँ आके कारोबार करके शाम को चले जाते हैं। शाम को चले जाते। ठीक। चंद ऐसे थे जो रहते थे, लेकिन वो चंद गरीब आदमी रहते थे जो दुकानें वगैरह चलाते थे, लेकिन वो रहते भी यहाँ थे,
तो उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो हिजरत यहाँ करके मतलब इस तरह की नफरतें तो आज भी नहीं है। नहीं। आज तो मतलब भाईचारे की अभी भी है, एक दूसरे की इज्जतें हैं। गमी शादी में लोग मतलब यहाँ से अगर आपके 10 किलोमीटर भी लोग किसी की फोतगी हो, किसी की शादी हो, आप लोग सबको जानते हैं, वहाँ जाते होंगे। चले अभी भी माशरती बंधन जो है बहुत मजबूत है यहाँ पर। जी कोई हाँ। लड़ाई झगड़े का ठीक है, इंसानी मुआशरा यहाँ तो हो जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इस तरह की नफरतें अमूमन नहीं कुछ है, नफरत कम है। नफरतें कम है। नाज़रीन, आपने यहाँ दरसाना छन्ना की तारीखी जो यहाँ मामलात हैं उस वो हाजी साहब के ज़बानी सुनी। एक और इम्पोर्टेंट जगह है जिसके मुतालिक हम हाजी साहब से पूछेंगे। हाजी साहब, यहाँ एक यूसुफ शाह का दरगाह है, जी हाँ। ये यूसुफ शाह का दरगाह कहाँ पर वाक़ है और ये कितना कदीम है? आपकी यादाश्त से बहुत ज़्यादा पुराना दरगाह है। मेरी यादाश्त से काफी पुराना है। तो ये कहाँ के सैयदों में से थे? ये लसबेले के सईद अमीनानी सईद बोलते हैं इसको। ये लसबेला डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में रहते हैं। हाँ, वहाँ से फिर ये दरसों कर पास आकर रहे थे। अच्छा, तो इनसे मतलब इनकी मुर्शिदी और पीरी का वो सिलसिला था। हाँ तो अब भी इनके दरगाह पर जो है उर्स वगैरह लगते हैं? जी हाँ, लगते हैं। मेला भी होता है, मेला हर साल होता है। हर साल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने वक्त निकाला, मैं मेहरबानी। आपको ज़हमत दी। नाज़रीन, आपने दरसाना छन्ना के लफ्ज़ी माने, यहाँ के रिहायशी लोगों जो तारीख़ी तौर पर यहाँ आबाद है और इस वक्त तक जो हरियाली पाई जाती है उसके असबाब, महाजन जो सिंधी का एक लफ्ज़ है उसके माने आपने हाजी साहब से सुने। और हाजी खुद यहाँ जो मोहम्मद गोट है वहाँ कब आबाद हुए, कैसे आए और उनके जो बड़े थे वो किस तरह जो है यहाँ ज़मींदारी किया करते थे, कैसे जो है इनकी रिहाइश यहाँ मुस्तकिल बुनियादों पड़ी, ये जानने के बाद हम आज के इस एपिसोड पर आपसे चाहते हैं इजाज़त। अगले एपिसोड इसके लिए आपके पास फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मलीर न्यूज़ के पेज को फॉलो करें। पेशकश मलीर न्यूज़।